अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद शाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। फिलीपीन के सूबे बतनगाज में 6.7 की शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चीनी खबर रसां इदारे के मुताबिक फिलीपीन के इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक के तर्जुमान ने बताया कि ज़लज़ला गुज़िश्ता रोज़ मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:50 पर आया। उन्होंने बताया कि ज़लज़ले का मरकज़ खिलतगां शहर से 16 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था और इसके ज़ेर ज़मीं 116 किलोमीटर थी। उन्होंने मज़ीद बताया कि ज़लज़ले से किसी किस्म के नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। Guys, go under your table. Lakas. Go under your table, guys. Hello, hindi pa ba sila magpapabalabas Hello. nito? God. Hello, ang tagal. Hello. Uy, Jesus. Hello. Jesus. It's been almost 1 minute, I think more than 1 minute, guys. I'm still shaking. Let's take presence of mind. I think this is like around intensity 5 or 6. Pwede na bang lumabas? Yeah, somewhat. Pwede ba lumabas? Wait lang, let's wait. Wait for... Finish muna. Guys, mag-pray tayo, guys. Still shaking, so we need to wait for... Oh, that is... Guys, labas tayo. Mga intensity 6, I think. Intensity 6 or 5. Ang lakas. Kasi naka-receive ako notification eh. 5.5 sabi. सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी इदारों ने एक हफ्ते के दौरान 14,648 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी ज़राए अबलग के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद में से 8,995 अफराद सरहदों की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे, जबकि 116 अफराद ऐसे हैं जो मजदूरान के क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सऊदी हुक्काम का कहना है कि ज़ेर हिरासत अफराद में 46% यमनी, 44% इथोपियन और 10% दीगर ममालिक के वतनी हैं। साबिक वज़ीर आला नवाज शरीफ की एक तस्वीर से पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। इमरान खान के वज़ीर से लेकर वहां की अवाम तक हर कोई नवाज शरीफ पर निशाना साध रहा है। बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कई वज़रा ने इन्हें गद्दार तक कह दिया। लोग कह रहे हैं कि शरीफ को दुश्मनों के साथ दोस्ती दिखाने की पुरानी आदत रही है। दरअसल इस तस्वीर को अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ट्वीट किया है। तस्वीर में नवाज शरीफ के साथ अफगानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब बैठे नजर आ रहे हैं। इन दोनों की ये मीटिंग लंदन में हुई। इस दौरान वहां वजीर सईद सादत नादिरी भी मौजूद थे। इस तस्वीर के साथ बताया गया है कि इस मीटिंग में दोनों ने एक दूसरे के मुफादात पर तबादले ख्याल किया। बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ इलाज के बहाने नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे हैं। ट्विटर पर इस तस्वीर के आते ही नवाज शरीफ ट्रेंड करने लगे। कई लोग नवाज शरीफ की हिमायत में ट्वीट कर रहे थे तो वहीं कई लोग इनके खिलाफ लिख रहे थे। इधर तस्वीर को देखकर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन आग बगूला हो गए।
انہوں نے ٹویٹر پر لکھا، نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنا خطرناک تھا کیونکہ ایسے لوگ بین الاقوامی سازشوں میں ساتھی بن جاتے ہیں۔ نواز شریف کی افغانستان میں را کے سب سے بڑے حلیف حمداللہ محب سے ملاقات ایسی ہی کارروائی کی مثال ہے۔ روزانہ 6 لیٹر دودھ اور 9 بچے ایک ساتھ پیدا کرنے والی خاتون اپنے ہی بچوں سے تنگ آ گئی۔ کچھ ماہ قبل ایک ایسی خاتون کی خبر وائرل ہوئی تھی جن کو خدا کی طرف سے سب سے بڑی نعمت اور حیرت انگیز تحفہ ملا۔ ان کی یہاں ایک ساتھ 9 بچوں کی پیدائش ہوئی جن میں 5 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہیں۔ خاتون نے اس وقت اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میرے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ خوشی کیسے مناؤں، دنیا کی سب سے زیادہ خوش نصیب عورت ہوں میں جن کو یہ 9 بچے ایک ساتھ ملے۔ البتہ اب ان کا حالیہ بیان سامنے آیا ہے۔ شروع میں تو میں بچوں کی پرورش کے حوالے سے پرجوش تھی لیکن اب تھک گئی ہوں۔ بچوں کے لیے 100 نیپیز اور 6 لیٹر دودھ ایک روز میں ہی استعمال ہو جاتا ہے، مگر میں ان تمام پریشانیوں کے باوجود مزید بچوں کی خواہش رکھتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ میرے اور 3 یا 4 بچے ہو جائیں۔ امریکہ نے عراق سے بھی اپنا جنگی مشن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عراقی اور امریکی رہنماؤں نے کھلے عام یہ تسلیم نہیں کیا کیونکہ ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی کتنی ضرورت ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن سے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے ملاقات کی تھی۔ دونوں لیڈروں کی بات چیت کو اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا نام دیا گیا۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک نے سیکیورٹی کے تناظر میں کئی اہم اقدامات اٹھانے کا بھی اصولی فیصلہ کیا۔ اس ملاقات کے بعد ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا گیا۔ اس بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ رواں برس عراق سے بھی امریکہ اپنا جنگی مشن ختم کر دے گا۔ جو بائیڈن اور مصطفیٰ کاظمی کی ملاقات میں کیا اہم نوعیت کے فیصلے لیے گئے؟ مشترکہ بیان کے مطابق امریکہ 41 دسمبر 2021 کو عراق میں جاری اپنا جنگی مشن ختم کر دے گا۔ اس کے بعد دونوں ممالک میں قائم سیکیورٹی تعلقات کو عراقی فوج کی تربیت، مشورات اور انٹیلیجنس کے تبادلے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ رواں برس کے اختتام پر عراق میں امریکہ کا کوئی ایسا فوجی نہیں رہے گا جس کا کوئی جنگی کردار ہوگا۔ دونوں ملکوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں کے زیر اعتماد فوجی اڈے عراق فوج کے ٹھکانے ہوں گے اور ان کے تحت اپنی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ مشترکہ بیان میں صاف کہا گیا ہے کہ عراق میں کوئی بھی غیر ملکی فوجی صرف اور صرف عراقی فوج کی انتہا پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ کی سرکوبی میں مدد کرے گا۔ اس معاہدے پر عراقی پارلیمنٹ یقینی بحث کرے گی لیکن اس کے منظور شدہ قرارداد پر عمل کرنا لازمی نہیں ہوگا۔ You know, we support strengthening Iraq's democracy and we're anxious to make sure the election goes forward in October. And we're also committed to our security cooperation. Our shared fight against ISIS is critical for the stability of the region, and our counterterrorism cooperation will continue even as we shift to this new phase we're going to be talking about. Today our relation is stronger than ever. Our partnership exists for economy, the environment, health, education, culture, and more. I'm looking forward to work with you, Mr. President, to bring our two countries more closer for benefit of Iraq and United States. God bless our two countries. Thank you, Mr. President. Thank you. I think things are going well. Our role in Iraq will be as dealing with it's just to be available to continue to train, to assist, to help, and to deal with ISIS as it arrives. But we are not going to be by the end of the year in a combat mission. خاتون نے گاڑی پیٹرول پمپ پر ٹھوک ڈالی۔ خوفناک حادثے کے بعد جائے واقعے پر کیا حالات ہیں، دیکھتے ہیں اس واقعے کے مناظر۔
सऊदी अरब में एक खातून ने गाड़ी पेट्रोल पंप पर मौजूद पेट्रोल मशीन को टक्कर दे दी, जिसके बाद गाड़ी में और पेट्रोल मशीन में आग भड़क उठी। हादसे के बाद गाड़ी चलाने वाली खातून और गाड़ी में सवार एक शख्स नीचे उतरे और इस जगह से दूर भाग गए, लेकिन जाए वाक़े पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और गाड़ी में सवार दोनों अफराद भी महफूज रहे। इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान न होने के सबब इस बड़ी वजह यह है कि पेट्रोल पंप पर मौजूद अमले ने हाजिर दिमागी दिखाते हुए फौरन आग को पेट्रोल पंप पर मौजूद आग बुझाने वाले मशीन से आग को बुझा दिया। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि खातून का कोई ऐसा इरादा नहीं था, जो गलती से गाड़ी पर काबू ना रहा और ये हादसा पेश आया। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद पूरी दुनिया में 19.52 करोड़ हो गई है और इसकी वजह से 41.76 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग की जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया की 192 ममालिक और खितों में मुतासिर अफराद की तादाद 19,52,56,112 हो गई है, जबकि 41,76,605 अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर तेजी से फैल रही है। यहाँ मुतासिरा अफराद की तादाद 3.76 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और 6.11 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। कोरोना इन्फेक्शन के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में दूसरी और हलाक होने वाले अफराद के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बुध के रोज़ दिल्ली में कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी से मुलाकात की। रवां साल बंगाल में असेंबली इंतखाबात में दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद दोनों रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात थी। ये इजलास 2024 के आम इंतखाबात के लिए बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश के पेश नज़र अहम समझा जा रहा है। इस मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अपोजिशन को मुत्तहिद करना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस को रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? एक चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, एक चर्चा पार्लियामेंट में होता है। हाथ दीजिए ना यार। आसाम और मिजोरम की सरहद पर पुरतशद्दुद झड़पों में आसाम पुलिस के 5 जवानों की हलाकत के आज एक रोज बाद साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने इन अमवात पर अफसोस का इजहार किया और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर तंज में कहा कि उन्होंने नफरत के बीज बोकर मुल्क को नाकाम किया और आवाम की जिंदगियों में बेइत्तेमादी पैदा कर दी है। राहुल ने आसाम मिजोरम बॉर्डर के हैशटैग के साथ ट्वीट किया है कि जिनकी जान गई है उनके अफराद खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जख्मी अफराद जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। होम मिनिस्टर ने नफरत के बीज बोकर और आवाम की जिंदगियों में
बेइत्तेमादी पैदा करते हुए फिर एक बार मुल्क को नाकाम किया है। हिंदुस्तान इसके खतरनाक नतायज भुगत रहे हैं। गुज़िश्ता रोज रियासत मिज़ोरम की दस्तूरी सरहद के दिफा की कोशिश में आसाम पुलिस के 5 अरकान हलाक हो गए और 50 से ज़ायद जख्मी हुए। दोनों शुमाल मशरिकी रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़ा गुज़िश्ता रोज पुर तशद्दुद बन गया। हुकूमत आसाम ने एक बयान में कहा है कि 5 महलूकीन में सब इंस्पेक्टर स्वप्ना राय और 4 कांस्टेबल शामिल है। वक्फे से आसाम और मिज़ोरम की सरहद पर झड़पें होती रहती है और यहाँ तनाज़ा तवील अरसे से तस्फिया तलब है। नाजरीन, आप देख रहे थे एआर टीवी पर वर्ल्ड न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं एआर टीवी चैनल। क्या आप अपनी लड़कियों की तालीम के लिए परेशान हैं? आपकी परेशानियों का हल न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, पुराने शहर बिलखुसूस संतोष नगर के अतराफ रहने वाली आवाम के लिए खुशखबरी। काबिल तजुर्बेकार बासलाहियत असातिज़ा की टीम, इस्लामी तालीम और तरबियत का नज़्म, कमज़ोर तालिबात पर खुसूसी तवज्जो, MPC, BIPC, CEC, MEC कोर्सेस दस्तयाब, MSET, नीट, CPT, ICT इम्तिहानात की तरबियत, स्कॉलरशिप्स की सहूलत, ट्रांसपोर्ट सहूलत भी दस्तयाब। दाखिले के लिए फ़ोन नंबर 7330621969 या ओल्ड संतोष नगर कॉलोनी हमारे कॉलेज पर रब्त पैदा करें। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की ज़ेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉपिंग टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।